Hi, good evening, guys. I guess my voice is audible to all of you. Please let me know in the chats if my voice is clearly audible. ओके सो आज का सेशन हम लोगों ने जो रखा है दैट इज़ हमने बिल्कुल वी आर स्टार्टिंग द सीरीज़ वंस अगेन। तो हमने पूरा सीरीज़ को अभी रिबूट किया है एंड वी एंडेड द सीरीज़ 5 days बिफोर फॉर the hack and slash webinar series. So the series has been started today and this will continue for 10 days, upcoming 10 days, and we would be covering different sessions and different topics in the upcoming sessions, right? So today's session is based on बेसिकली अबाउट सिस्टम हैकिंग की सिस्टम हैकिंग क्या होती है और किस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। सो कितने लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं? कैन आई सी इन द चैट्स हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम? Please do use your hands or raise your hands or just type in the chats. Let me see how many of you are here for the first time. Okay, सो लॉट ऑफ पीपल आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। और जो लोग पहली बार आए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ सेकेंड टाइम थर्ड टाइम में बहुत बहुत टाइम बाद फिर से भी आ रहे हैं। आई कैन सम ऑफ द नेम्स आई कैन रिमेंबर एंड सम ऑफ द फेसेस आई कैन सी, राइट। सो वी बेसिकली ओके, थर्ड टाइम, दैट्स गुड। सो दिस सेशन वुड बी बेस्ड ऑन वन ऑफ द मेथड that how we can go into what's basically penetration testing होता कैसा है, दिखता कैसा है, प्रैक्टिकली क्या होता है उसके अंदर, वो लोग हम लोग समझने वाले हैं। जो लोग यहाँ पे दूसरी तीसरी चौथी बार हैं उनको पता है कि हम लोग प्रैक्टिकली सब कुछ यहाँ करते हैं, राइट। सो जो लोग नए हैं उनके लिए लेट मी गिव यू एन इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ एंड देन वी विल कंटिन्यू अहेड विद द सेशन, right? So starting with the simple introduction of ours, right? So here is a simple about us, right? So we are a company, we are a community, Hackersvilla Cybersecurity Private Limited, जिसका लोगो आपको bottom top left में दिख रहा होगा। So we have trained more than 500 students in last 2 years, right? And we have conducted more than 120 sessions. I guess कि 130 के around कुछ हो चुके हैं अब, with more than 15,000 people all around the globe in last 6 to 8 months, right? These are our social media handles. We have done a lot of awareness sessions offline. Even we are called upon by the colleges and seminars, right? We have our mentors have been the speakers for different communities. We are volunteer for top-notch communities of India. For example, if I talk about Nullcon, if I talk about BSites or C-sites, right? We have been on Null Meets. We have been volunteering actively those conferences as well, right? So this is basically a startup that we started in the last year, and this is wholly focused on providing valuable cybersecurity content to the people over here in free of cost. And obviously we also have professional courses if you want to have live classes with the mentors, right? And then we have B2B security services, right? So, moving ahead, who am I? My name is Sanjay Singh, and I'll be your host and mentor for today, right? Cybersecurity expert and trainer. I have keen interest in providing in-depth knowledge as it's written, right? Because for me, the thing was why I started Hackersvilla, why we basically started with this thing, this community. Because when I was a kid, maybe आपका भी एक टाइम हुआ होगा जब आप साइबर सेक में इंटरेस्ट हुए होगे, राइट? मे बी इट कुड बी इन कॉलेज और मे बी कॉलेज के बाद, because I guess currently in the chats we have age group 18 to 24. Can you tell me simply just your age, that आप कौन सी age group से belong करते हो? 18 to 24 की age group में if you're belonging, right, you can just type in the chats that yes, I belong to the age group, because mostly we have this age group, right? So you might have got interested in this age, right? So you can see that 2019 and okay, 17, 21, 18, okay, so you can see even 24, right? So we have people from a huge this particular age group is a age group where a lot of people get interested in cyber security. तो ये जो age group है, right, when I was at your place and when I was around 14 15, I asked my parents for a course and वो बहुत महंगा था. It was around 25,000 at that time.
So I always had this thing in mind to start up a community where we can provide the cybersec knowledge to all the people, because in India it's basically a country of people who are not that much financially stable. The people maximum population of India is middle class, right? So we know about that. It's a practical truth about India. So for that we are focusing our series, and अभी जल्दी ही बहुत सारे लोगों का हमें रिक्वेस्ट आया था कि सर हिंदी में हमें सेशंस चाहिए. मोस्टली ऑल दी सेशंस आर इन इंग्लिश, राइट? सो बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया था. सो वी आर स्टार्टिंग अप अ यूट्यूब चैनल, एंड पहली वीडियो यूट्यूब चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उस पर एक पूरा प्लेलिस्ट शुरू होने वाला है जिसमें हिंदी की नेटवर्किंग से लेकर के सिक्योरिटी से लेकर के लिनक्स से लेकर के सारी वीडियोज़ आने वाली है स्टार्टिंग फ्रॉम 15th अक्टूबर, राइट? सो नेम ऑफ द चैनल हैकर्स विला साइबर सिक्योरिटी, आप टाइप करोगे आपको चैनल मिल जाएगा. सो यू कैन जस्ट सिंपली सब्सक्राइब राइट ऑन यूट्यूब, एंड 15th अक्टूबर से आना शुरू हो जाएंगे वीडियोस आफ्टर एवरी 2 to 3 days रेगुलर अपडेट्स हैं, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग ऑल द कंटेंट फॉर यू गाइज, सो दैट आप हिंदी में और अच्छे से चीज़ों को समझ के लर्न कर पाओ दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट आर हैपनिंग. अगेन अगर उसके बाद इफ़ यू वांट टू हैव लाइव क्लासेस, इफ़ यू वांट टू हैव लाइव सेशंस विद मी, लाइव सेशंस विद अदर मेंटोर्स ऑफ आवर community, you are welcome, and there's a small fee for that, right? And live sessions का अलग से हम लोगों का पूरा बैच चलता ही है, right? So anytime if you get anything, any error, any thing that you want to ask, these are my social media profiles where you can follow me or message me, right? Again, you have the number of the admins where you can just message, and I'll check out if the doubt is valuable. I'll simply just message you from there, right? So for name of the channel you can search hackers villa cybersecurity, right? It's simply the simple thing, right? So this is a Discord channel as well, Discord server, baby. We have more than 2000 people right now all over India. So I would request you to join the Discord channel as well. Discord channel का जो link है वो WhatsApp groups में already provided है. जो WhatsApp group में नहीं है उनको उनके Gmail पर WhatsApp group का link भी है, right? So Discord channel पे all the things that we do, right? All the things that we basically do in all ऑफ दीज सेशंस, उनका सब कुछ सारा रिसोर्स हमारा डिस्कॉर्ड चैनल के ऊपर ऑलरेडी है, राइट? कहाँ से कौन सी चीज़ डाउनलोड करनी है, कौन से सेशन का रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा, कौन सी चीज़ें कहाँ पे अपडेटेड हैं, वो सारी चीज़ें वी आर ऑलरेडी हैविंग इट ऑन आवर डिस्कॉर्ड चैनल. ऑल द रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थिंग, पोस्ट, रिव्यूज़, जॉब्स अगर चाहिए सिक्योरिटी की, वी आर पोस्टिंग ऑल द जॉब्स दैट आर अवेलेबल फॉर सिक्योरिटी इन डिफरेंट सेक्टर्स, राइट? एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन अ डिस्कॉर्ड चैनल. सो गो ahead, do join the discord channel. Simple link है hackersvilla.xyz/discord, and you will be able to get inside the discord channel. Let me just simply type the link in the chat so that you can also join directly clicking on it, right? So here's the Discord channel link, right? So let's move forward, right, with a very general question over here. एक बहुत जनरल क्वेश्चन के साथ हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे, एंड ये वाला सेशन हिंदी में ही रहने वाला है. तो इंग्लिश में अगर किसी को ये चाहिए तो वी ऑलरेडी हैव सिस्टम हैकिंग का सेशन रिकॉर्डेड ऑन यूट्यूब, राइट? सो क्या डू यू बिलीव इन सिक्योरिटी? कितने लोगों को सिक्योरिटी में भरोसा है, सिक्योरिटी पे भरोसा है, सिक्योरिटी को समझते हो, मानते हो कि हाँ एग्जिस्ट करती है? कितने लोग सिक्योरिटी के लिए मतलब ऐसा है कि हाँ मैं बिलीव करता हूँ? येस या नो बोलना, राइट, इन द चैट्स. येस या नो, डू यू बिलीव इन सिक्योरिटी? क्या लगता है सिक्योरिटी आज की डेट में एग्जिस्ट करती है आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स में और हर चीज़ में, राइट? देयर इज नो सिक्योरिटी, राइट? सो बहुत सारे येस और नो हमें आ रहे हैं, राइट? एंड सी व्हाट डू आई मीन बाय सिक्योरिटी? सिक्योरिटी से मेरा मतलब है कि क्या आपको लगता है कि आपके पास प्रिवेसी है? क्या आपको लगता है कि आप सिक्योर हो? क्या आपको लगता है कि कोई आप पे स्पाई नहीं कर सकता? बिकॉज ये चीज़ें हैं जो सिक्योरिटी को डिफाइन करती हैं, राइट? प्रिवेसी होना या ना होना एक चीज़ है, बट आपके ऊपर शायद कोई स्पाई कर सकता है, राइट? ऑब्वियसली सी अगर आप बोलोगे आपके ऊपर कोई स्पाई कर सकता है तो बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं मेरे ऊपर कोई स्पाई नहीं कर सकता बिकॉज मैंने कोई सिस्टम में ऐसा कुछ इंस्टॉल ही नहीं किया, राइट? बट कमिंग फ्रॉम मी, आई हैव मेट पीपल जो लोग NIA के अंदर काम कर चुके हैं और जो लोग CIA के साथ काम कर चुके हैं. तो उन लोगों के पास ऐसे टूल्स हैं जो आपके फ़ोन को 15 से 20 मिनट के अंदर हैक कर सकते हैं बिना कुछ इंस्टॉल करे या बिना कुछ डायरेक्ट एक्शन लिए, एंड यू वोंट गेट टू नो. आपको पता भी नहीं चलेगा ये सब कब हो गया.
एंड दैट इज़ वाई सिक्योरिटी जो है आज की डेट में आई कैन से दैट इट डज़ नॉट एग्जिस्ट, राइट? बिकॉज अगर वो टूल्स लीक हो गए, इफ दोज टूल्स गेट लीक्ड, गेट लूज्ड, राइट, सो ऑब्वियसली there would be a lot of things that could happen, right? So as you guys said that little and there is no security, 50% security, 50-50 है, ठीक है? तो it's totally right, it's totally depend on what you think of security, क्योंकि अगर आप सोचोगे है तो आपको लगेगा है, अगर आप सोचोगे नहीं है तो नहीं है, because originality में security is a myth, right? So in today's session we would be going ahead with system hacking, एक ऐसा ही हम केस का बात करेंगे that how security was broken and how people used to think there is security but actually में security थी ही नहीं, right? And by the end of this session I'll tell you about our tell you about something special, right? About our community as well, so that if you want to join you can join that, राइट? ओके, तो आगे चलते हैं और देखते हैं। अभी प्रेजेंटेशन पे पूरा नहीं रहेंगे, लेट मी शेयर द स्क्रीन कम्प्लीटली सो दैट यू कैन सी व्हाट आई एम डूइंग, राइट? एंड हम लोग जो है इसके अंदर पूरा ऐसे पूरा एक जो है कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं, दैट हाउ सिक्योरिटी वाज, पीपल थॉट दैट सिक्योरिटी है बट एक्चुअली में वहाँ नहीं था, ठीक है? तो ये एक कहानी है 2010-11 के आसपास की, एंड यू माइट हैव हर्ड अबाउट NSA। किस किस को NSA के बारे में पता है? Anybody here who knows about what NSA is, और NSA क्या है? NSA it's National Security Agency of America, right? And it's the most intelligent and most advanced security agency, ठीक है? अब वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिक्योरिटी एजेंसी है अमेरिका का, और वो लोग जो टूल्स बनाते हैं, जो प्रोटोकॉल्स बनाते हैं, वो वाइडली पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किए जाते हैं, राइट? सो हमारे पास क्या हो रहा है कि 2011-2010 का टाइम था जब NSA ने पूरे वर्ल्ड से सबसे बेस्ट सिक्योरिटी रिसर्चर्स और सिक्योरिटी इंजीनियर्स को उठाना शुरू करा। और जब वो सिक्योरिटी इंजीनियर्स उठ करके आए तो उनको एक काम दिया गया दैट दे हैव टू बेसिकली क्रैक विंडोज़ एप्लीकेशन, यानी कि विंडोज़ का पूरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, राइट? सो उसको हैक करने को दिया गया। ओके, so Brian, basically this is the Hindi version of the webinar, right? For the English version it's already recorded on YouTube, and we would be having the English version once again day after tomorrow for the same session, right? So this is basically a Hindi session because most of the request that we have got कि एक हिंदी में session होना चाहिए, so that's the part, right? You can leave the meet, right, otherwise, and we would be having the English session once again, so no worries about that. ओके, सो हाँ, तो हम लोग बेसिकली थे NSA के पार्ट में, एंड NSA ने यहाँ पर बोला कि हमें क्या चाहिए कि हमें एक ऐसा बग निकाल कर दो, राइट? उन्होंने सिक्योरिटी इंजीनियर्स को बोला कि हमें एक ऐसा बग निकाल कर दो जिससे हम लोग विंडोज़ के अंदर हैक कर पाए। तो 2010 से 2011 का टाइम लिया गया, राइट? इट वाज बेसिकली दैट 1 ईयर दैट NSA टुक, एंड NSA ने जो है टाइम दिया अपने सिक्योरिटी रिसर्चर्स को, एंड सिक्योरिटी रिसर्चर्स को ये टाइम देने के बाद 1 साल बाद जो बग निकाला गया, दैट बग वाज बेसिकली फोकसिंग ऑन विंडोज़, कि वो विंडोज़ में कैसे हैकिंग कर पाएगा। मतलब विंडोज़ के अंदर डायरेक्टली बिना किसी यूज़र को पता चले, बिना ओनर को पता चले, एक ऐसा बफर ओवरफ्लो अटैक था जिसकी वजह से हैकर्स वर एबल टू गेट इनसाइड विंडोज़, ठीक है? हैकर्स विंडोज़ के अंदर डायरेक्टली पेनिट्रेट कर पा रहे थे, और ये बग बहुत ज़्यादा ही सीक्रेट रखा गया, राइट? NSA basically NSA basically took this thing by themselves and they started developing a framework on that. उन्होंने एक सेम फ्रेमवर्क इस पे डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, एंड उन्होंने सोचा कि इसको हम लोग अपने पर्पस के लिए रखेंगे, राइट? सो दे बेसिकली केप्ट इट फॉर 5 ईयर्स, राइट? 2011 से 2016 तक उन्होंने बहुत सारे कंप्यूटर्स को हैक किया बिना किसी को बताए, एंड इन 2016 व्हेन हैकर्स ऑफ अदर कंट्रीज़ लाइक इराक और ईरान के बहुत सारे हैकर ग्रुप्स है जिनको शक होने लगा, बिकॉज दोज कंट्रीज़ वर अगेंस्ट अमेरिका, तो उनको जब शक हुआ दैट दीज गाइज आर डूइंग समथिंग बैड, सो देयर वाज अ ग्रुप कॉल्ड एज शैडो ब्रोकर्स, जो आज भी एग्जिस्ट करता है, and this is the very large group of hackers, right? You can simply google them. तो shadow brokers के ग्रुप ने इनके अंदर से NSA को हैक किया, and NSA को हैक करके they found out about this particular attack, and when they found out बेसिकली दिस अटैक, दे गॉट टू नो कि यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें चल रही है एंड क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चल रही है। तो शैडो ब्रोकर्स ने जब ये टूल को
पब्लिक में रिलीज़ कर दिया तो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उन टूल्स को डाउनलोड करके एक रैंसमवेयर क्रिएट किया एंड इट वाज द बिगेस्ट रैंसमवेयर ऑफ द डेकेड। इसको नाम दिया गया WannaCry रैंसमवेयर एंड WannaCry रैंसमवेयर वाज समथिंग दैट ये आपके पूरे सिस्टम को हैक करता था और सिस्टम को हैक करके आपकी सारी फाइल्स को इनक्रिप्ट करता था और डिक्रिप्ट करने के लिए इट आस्क्स फॉर अ की, राइट, एंड व्हेन यू गिव द की, राइट, देन आपकी फाइल्स रिकवर होती थी और की के लिए आपको पैसे पे करने पड़ते थे, आपको बिटकॉइन के क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसे पे करने पड़ते थे बिकॉज क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आप किसी को ट्रैक नहीं कर सकते कि आप किसको पे कर रहे हो। सो दैट वाज द पॉइंट, राइट। सो यू कैन सी दैट इवन अगर एक टूल भी लीक हो जाता है तो उससे कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है एंड बिलियंस के अंदर यहाँ पर नुकसान हुआ था, राइट। इवन आई स्टिल रिमेंबर दैट इवन द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल्स, उनका पीसी भी हैक हो गया था एंड देन दे केम टू मी कि यार ये कैसे हो जाता है, कैसे इसको ठीक करते हैं। तो ऑब्वियसली इसके लिए हमें की का वेट करना पड़ता है कि कोई डेवलप करेगा तो हम इसको डिक्रिप्ट कर पाएंगे। बट या एट दैट टाइम 2016-17 में एक बहुत बड़ा अटैक था, बहुत बड़ा मैसेकर था WannaCry। सो WannaCry दिस रैंसमवेयर व्हाट इट अलाउड, ठीक है, डी इनक्रिप्ट करने से पहले किसी भी इस फाइल को, इसके अंदर जो फ्रेमवर्क था कि वो एक्सेस ले पा रहा था किसी भी विंडोज़ का डायरेक्टली, राइट। और आज की डेट में WannaCry इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, राइट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हैव द एक्सेस टू दिस, ठीक है। अब हम ये देखने वाले कि हम लोग कैसे इसका एक्सेस ले सकते हैं, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के टाइम में इसका यूज़ कब होता है और प्रैक्टिकली पेनिट्रेशन टेस्टिंग जब हम करते हैं तो WannaCry वाला जो इसका जो कोड नेम था, इसका कोड नेम था एटर्नल ब्लू, राइट। सो इसका कोड नेम एटर्नल ब्लू था एंड द बग बेसिकली जो इसका पूरा फ्रेमवर्क था दैट वाज कॉल्ड एज एटर्नल ब्लू। विंडोज़ ने, माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली इसका फिक्स तो किया बट द प्रॉब्लम वाज दैट माइक्रोसॉफ्ट उस टाइम विंडोज़ 10 पे काम करने लग गया था एंड इवन विंडोज़ 10 के अब नए वर्जन्स आ रहे थे तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसका जो सपोर्ट है विंडोज़ 7, 8, 8.1, 10 के प्रीवियस वर्जन को नहीं दिया। तो आज भी अगर कहीं वो वाले विंडोज़ के वर्जन्स यूज़ हो रहे हैं तो वहाँ पर इसका कोई फिक्स नहीं है एज सच और एक्सेस लिया जा सकता है, right? So that is the main problem over here. Okay, so there's a question. I already attended to English session. I am not able to understand. Yes, Sukumar, you can simply leave the session, right, if you are not comfortable, right. So we would be having the English session for this session day after tomorrow. As I'm dictating once again, it's on 13th October. The English version of the session would be there on 6 p.m. Okay, so या एटर्नल ब्लू का यहाँ पर हमारे पास एक्सेस आया एंड एटर्नल ब्लू से हमें बेसिकली यहाँ से अटैक देखना कि ये कैसे होता है। नाउ लेट मी आस्क यू, कितने लोगों ने यहाँ पर क्रैक फाइल्स डाउनलोड करने की कोशिश की है किसी टाइम? हाउ मैनी ऑफ यू हैव ट्राइड डाउनलोडिंग क्रैक फाइल्स फॉर अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर? ठीक है, हैंड रेज मत करना, डायरेक्टली मेरे को चैट्स में बताओ एक बार, जस्ट लेट मी नो इन द चैट्स, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्राइड, मे बी फोटोशॉप के लिए, मे बी किसी गेम के लिए, मे बी फॉर GTA, मे बी फॉर असैसिन्स क्रीड, मे बी फॉर एनी काइंड ऑफ अदर एप्लीकेशन, यूटिलिटी एप्लीकेशन, और सबने किया होगा। Obviously this is something that most of you guys have must have tried and this is what we do, right? And we all know that हमें कोई movie भी download करनी होती है, we don't buy that movie, we go to torrent or something and then we do that, right? So the point is that अगर मैं कोई crack file अभी download करने जाता हूँ, see if I want to download Adobe Photoshop crack or any kind of crack over here, so what happens कि crack file download करने के लिए मेरे को अलग अलग links यहाँ पे मिलेंगे, राइट। और इन लिंक्स पे जाने से होगा क्या, दैट इन लिंक्स पे जाने से आई विल बेसिकली विजिट ऑल दीज वेबसाइट्स विच माइट बी हैविंग सम एड्स और विच माइट बी हैविंग सम डिफरेंट, तो Pinterest आ गया, माइट बी हैविंग सम डिफरेंट यू नो अदर थिंग्स दैट, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी वहाँ पर, ऐसे लिंक्स होंगे डाउनलोड वाले वहाँ पर, दैट अगर मैं क्लिक कर दूँ तो शायद मैं कहीं और पहुँच जाऊँगा, right? So you can see, let's try to go ahead and find some link, right? So जैसे कि यहाँ पर लिंक आया, right, and you can basically see that यहाँ पर अगर मैं डाउनलोड फ्री पे क्लिक करता हूँ, so this is not the actual download button, right? जो लोग क्रैक डाउनलोड करते हैं उनको पता है कि लास्ट में एक लिंक दिया होता है, राइट, और उस लिंक से करोगे तो मे बी पॉसिबली कि आपको ठीक चीज़ मिल सकती है, जैसे यहाँ पर ये दिए हुए हैं, यहाँ पर ये URL दिया हुआ है, राइट। सो मे बी पॉसिबल है कि यहाँ से आपको कुछ सही चीज़ मिल जाए, बट स्टिल वाई दिस पीपल आर गिविंग यू फॉर फ्री, ये लोग क्यों दे रहे हैं आपको फ्री,
नंबर वन, बिकॉज दे आर हैविंग सम एड्स एंड एडवर्टीजमेंट्स डायरेक्टली ऑन देयर पेज, कि अगर कहीं से भी कोई बंदा गलत क्लिक कर देता है जैसे हमने अभी किया, तो एक एडिशनल फाइल डाउनलोड हो जाएगी, और ये एडिशनल फाइल डायरेक्टली आपके सिस्टम में जब आप रन कर देते हो इसे, बिकॉज 90% ऑफ द पीपल हु आर डाउनलोडिंग द क्रैक फाइल्स आर नॉट अवेयर अबाउट द थिंग्स। जब वो पहली बार करने जाते हैं तो ऐसी कुछ चीज़ें डाउनलोड हो जाती हैं उनके पीसी में, और दैट लीड्स टू हाँ टेकिंग द एक्सेस ऑफ द सिस्टम, राइट। जैसे अभी यहाँ पर क्या है कि मेरे पास एक पूरा एडोब का ही दिखा रहा है, एंड देन इट हैज़ ऑल्सो गिवन मी अ लिंक, राइट। सो लिंक को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, एंड लेट्स ट्राई डाउनलोडिंग दिस लिंक। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिंक को कॉपी किया, लिंक को कॉपी करने के बाद मैंने पेस्ट किया, और ऑटोमेटिकली एक फ़ाइल डाउनलोड हो गई यहाँ पे। अब फाइल जो है जिप फाइल एक रार फाइल है, दैट इज़ अ कंप्लीट बेसिकली एक ऐसा कंप्रेस्ड फाइल है यहाँ पर। बट अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ एंड इसको ओपन करता हूँ, राइट, यू कैन सी दैट इसके अंदर पासवर्ड भी है। तो ऐसा क्यों है कि उन्होंने पासवर्ड भी यहाँ लगा रखा है और उसके बाद फाइल भी दे रखी है? देयर माइट बी समथिंग रॉन्ग। सो लेट्स सी दैट पासवर्ड उन्होंने बार बार बता रखा है, इट्स 123, एंड इफ आई ओपन दिस यू कैन सी इट हैव अ setup.exe। नाउ आई डोंट नो अबाउट दिस setup.exe कि ये कितना ज़्यादा स्टेबल होगा या कितना ज़्यादा मेरे लिए सही है। लेट मी सी इफ आई कैन डायरेक्टली पेस्ट इट ऑन माई डेस्कटॉप, राइट। इट वुड आस्क मी फॉर द पासवर्ड और समथिंग। हाँ, तो ये डेस्कटॉप पे मैंने डाल दिया है, राइट। सो ओवर हियर यू कैन सी दिस इज़ द फाइल, ठीक है। इसको अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, दिस इज़ 305 MB, राइट, दिस इज़ 305 MB, एंड आई नो दैट पूरा फोटोशॉप इतने में आ ही नहीं सकता। नाउ आई डोंट नो दैट हाउ दिस सेटअप इज़ बेसिकली वर्किंग, राइट, एंड दिस पर्टिकुलर सेटअप माइट बी हैविंग डिफरेंट थिंग्स ओवर हियर। और यू कैन सी अगर मैं सिक्योरिटी में जा रहा हूँ तो यहाँ पर एक मेरे को नल SID दिख रहा है, मे बी इसकी परमिशंस के अंदर कुछ छेड़छाड़ करी गई है पहले से ही, दैट जैसे ही मेरे सिस्टम में आए ये इसको करप्ट करना शुरू कर दे। सो आई वोंट बी क्लिकिंग ऑन दिस setup.exe, बट इस setup.exe भी क्लिक करते ही बहुत कुछ ख़राब हो सकता है। सो द पॉइंट इज़ दैट दीज काइंड ऑफ फाइल्स आर द फाइल्स दैट ट्राई टू टेक योर एक्सेस ऑफ योर PC, राइट। सो हम लोग यहाँ पे देखने आए कि इन फाइल्स को क्रिएट कैसे किया जाता है, बट ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया, है ना, कि आप क्रैक फाइल्स को डाउनलोड करते हो और वो आपका एक्सेस ले लेती है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, इसके लिए वी वुड बी हैविंग वन मोर सेशन, ठीक है। बट अभी हम लोग ये देखते हैं कि ऐसी फाइल्स ना बनाने सी एक तो ये तरीका है कि एक फाइल्स ऐसी बना करके आपको भेजी जाए, आप डाउनलोड करो और उससे डायरेक्ट एक्सेस मिल जाए, तो दैट इज़ वन वे, राइट। सेकेंड वे इज़ आप एटर्नल ब्लू की तरह अटैक करो, कि अगर आपको डायरेक्टली अटैक करना है बिना कोई फाइल बनाए तो आप कर सकते हो। दोनों के अलग अलग तरीके हैं, दोनों का अलग अलग जो है डिसएडवांटेज और एडवांटेज है, राइट। सो द पॉइंट इज, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू द बेसिक सिनेरियो बिहाइंड इट, कि क्या चल रहा है इसके पीछे, एंड देन वी कैन कंटिन्यू विद द प्रैक्टिकल, राइट। सो सी नंबर वन पॉइंट इज दैट वी आर हैविंग द फर्स्ट मेथड, और फर्स्ट मेथड के अंदर क्या है कि दिस इज़ आर हैकर्स मशीन, और यहाँ पे हमारा विंडोज़ है जो कि विक्टिम का है, राइट। नाउ ये हैकर्स मशीन क्या कर रहा है कि ये हैकर्स मशीन यहाँ से एक EXE फाइल बना करके भेज रहा है, और ये EXE फाइल जो है यहाँ पर जा रही है। लेट्स से ये EXE फाइल अपने आप यहाँ चली गई, एक मेल के मेथड से, या फिर जैसे हमने क्रैक डाउनलोड किया वैसे एक सोशल इंजीनियरिंग अप्लाई करी हैकर ने और हमें डाउनलोड करवा दिया। तो यहाँ पर दिस पर्टिकुलर फाइल विल क्रिएट अ बैकडोर एंड क्रिएट अ बैक कनेक्शन विद हैकर्स मशीन. So that is what this particular file will do. But the point is that this particular file जिसको ये बनाया गया है, हम इसको किसी को भी भेज सकते हैं और किसी का भी एक्सेस ले सकते हैं. अगर हमें सामने वाले का IP एड्रेस नहीं पता फिर भी ये अटैक काम करेगा. What is IP address? For all the new people, IP address is an unique address जो आइडेंटिफाई करता है नेटवर्क पे, किसी भी इंटरनेट पे, लाइक आपका एड्रेस क्या है. जैसे आपकी घर का एड्रेस होता है जो यूनिक होता है आपके लिए, है ना. आपके घर वालों के लिए और आपके लिए शायद यूनिक नहीं हो क्योंकि आपके घर वाले और आप सेम एड्रेस शेयर कर रहे हो, बट मेरे लिए आपका एड्रेस यूनिक है. तो जैसे मैं आपके घर पे पहुंच सकता हूँ आपके आईपी एड्रेस से, वैसे ही इंटरनेट पे कोई भी आपके आईपी एड्रेस से आपके कंप्यूटर या डिवाइस तक पहुंच सकता है. तो अगर मेरे को आपका आईपी एड्रेस नहीं पता तो मैं आपको सिंपल सा एक EXE फाइल भेजूंगा, आप क्लिक करोगे और मेरे को एक्सेस मिल जाएगा. अगर मेरे को आपका आईपी एड्रेस पता है तो मेरे पास एडवांटेज है कि आई कैन सिंपली अटैक यू विदाउट सेंडिंग यू एनीथिंग. तो दो तरीके हैं, अगर आईपी सामने वाले का पता है तो अटैक करो उस तरीके से, अगर नहीं पता है तो EXE भेज करके देन दिस इज़ द सेकेंड अटैक. तो ये आईपी पता कैसे लगता है? ये पता लगता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के तरीक़ों से. नाउ वी वुड बी हैविंग अ सेशन ऑन इन्फॉर्मेशन गैदरिंग. उसके लिए पूरा 1-1.5 घंटे का हमारे पास पूरा एक सेशन होगा. तो उसमें यू कैन सी कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के कितने तरीके और कैसे आईपी एड्रेसेस को गैदर किया जाता है. Okay, so let's move forward.
एंड आई विल बी यूजिंग दिस वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ मैं VMware का लाइसेंस्ड वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। अगेन द लिंक्स आर गिवन इन आर डिस्कॉर्ड चैनल। इसका पूरा लिंक जो है डिस्कॉर्ड चैनल में ऑलरेडी गिवन है, और मैं काली लिनक्स का यहाँ यूज़ करूँगा। अब ये वर्चुअल मशीन या फिर VMware का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, इट्स बेसिकली लाइक अ प्लेयर। जैसे शायद आपके फ़ोन्स में म्यूज़िक प्लेयर और वीडियो प्लेयर होते हैं जो अलग अलग म्यूज़िक और वीडियोस को प्ले करते हैं, जस्ट लाइक एक सिमिलैरिटी है यहाँ पर। एक प्लेयर है जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम प्ले करता है। तो अभी मैंने काली ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर प्ले कर दिया है, एंड काली एक लिनक्स का ऐसा वर्जन है विच इज़ बिल्ड फॉर एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, राइट। इवन योर एंड्रॉयड फोन्स आर ऑल्सो लिनक्स, तो कुछ कमांड्स जो आप यहाँ पे रन करते हो आप अपने एंड्रॉयड पे भी रन कर सकते हो। तो अगर सीखना है, काली नहीं है, डाउनलोड नहीं हो रहा, ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा, तो कोई ऐसे पीछे हटने वाली बात नहीं है। यू कैन यूज़ योर एंड्रॉयड फ़ोन्स टू यूज़ ऑल द टूल्स, राइट। एक टर्मक्स नाम का एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, एंड यू कैन इंस्टॉल होल काली, या फिर आप साथ साथ उसमें पूरा सीख भी सकते हो। योर टर्मक्स सपोर्ट्स एवरीथिंग, जस्ट दैट आपके फ़ोन में 6 से 8 GB का स्पेस खाली होना चाहिए, राइट। सो गोइंग अहेड, अगर किसी के पास मैकबुक है तो मैकबुक में भी कोई ज़रूरत नहीं है इतना कुछ डालने की। मैकबुक इज़ ऑलरेडी बिल्ड ऑन यूनिक्स, तो टूल्स को आप डायरेक्टली रन कर सकते हो मैकबुक के अंदर। बाकी विंडोज़ वाले जो लोग हैं उनके पास अगर स्पेस वगैरह है, इफ़ यू हैव वर्चुअल मशीन का स्पेस, अगर आपके पास 50-60 GB आपके PC में है, सो यू कैन यूज़ दिस वर्चुअल मशीन एंड यू कैन डायरेक्टली इंस्टॉल काली ऑन योर विंडोज़ 10, और आप डायरेक्टली वर्चुअल मशीन पे रन कर लो जैसे मैंने किया है, सो दैट यू कैन कम टू योर विंडोज़ 10 एनी टाइम। सो इट्स लाइक एन एप्लीकेशन। ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम अभी एक एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन की तरह यहाँ रन कर रहा है, और मैं एक साथ अपने रैम के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे पास 16 GB रैम है, सो यू कैन सी करंटली कि मैंने काली लिनक्स जब यहाँ पे रन किया तो 66% रैम अभी यूज़ हो चुकी है। दैट मीन्स यू कैन सी दैट 10 GB रैम इज़ ऑलरेडी इन यूज़, जिस पे मेरा विंडोज़ चल रहा है एंड काली चल रहा है, एंड अगेन द होल रिकॉर्डिंग प्रोसेस एंड गूगल मीट इज़ गोइंग ऑन। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर के अभी 10 GB रैम यहाँ पे यूज़ हो रहा है। 5.2 GB स्टिल अवेलेबल विच आई कैन यूज़ फॉर एनी अदर वर्चुअल मशीन इफ़ आई वांट टू। ठीक है, सो बेनिफिट ऑफ यूजिंग वर्चुअल मशीन दैट आई डोंट हैव टू गो एनीवेयर। ठीक है, मेरे को यहाँ विंडोज़ पे ही बैठे बैठे सारा काम हो जा रहा है, मेरे को किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे या कुछ और बूट करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन डायरेक्टली यूज़ इट ओवर हियर, एंड यू कैन सी हाउ सिंपल इट इज़ कि अगर मेरे को विंडोज़ से कोई फाइल भी इवन कॉपी करनी है तो काफ़ी ईजी रहेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वांट टू कॉपी एनी फाइल, लेट्स से कि अगर इसके अंदर कोई फाइल है, लेट्स से दिस इज़ द फाइल, अगर मेरे को कॉपी करना है तो मैं यहाँ सिंपली कॉपी पे गया एंड काली में जा कर के मैं यहाँ सिंपली पेस्ट कर दूंगा, एंड यू कैन सी फाइल इज़ हियर। सो दैट्स हाउ ईजी इट इज़ टू गो थ्रू विद ऑल द थिंग्स, राइट। सो काफ़ी ईजी हो जाता है वर्चुअल मशीन्स को यूज़ करना, राइट। सो या सो हियर वी आर इन आर काली लिनक्स, एंड यहाँ पर हम लोग बेसिकली अटैक करेंगे, एंड हम लोग अटैक करने वाले विंडोज़ को। तो विंडोज़ 10 जो है अभी मेरा जो अभी इंस्टॉल्ड है, ऑब्वियसली इट्स प्रोटेक्टेड विद ऑल द फायरवॉल एंड एवरीथिंग, तो वो तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा अटैक करना। सो आई विल बी टेकिंग विंडोज़ 7 ओवर हियर, एंड इसको भी यहाँ पर पावर ऑन कर लेते हैं। Is there any minimum specs to run virtual machine? Minimum specs are not defined as such. आप 4 GB रैम पे भी virtual machine रन कर सकते हो, 2 GB काली को दे दो, 2 GB आप अपने विंडोज़ को दे दो, ऐसे करके काम करता रहेगा। बाकी इफ़ यू हैव मोर देन 4 GB ऑफ रैम या फिर 8 GB रैम अगर आपके पास है मिनिमम, और आज के लैपटॉप्स में मिनिमम 8 GB होता ही है, तो आप आराम से वर्चुअल मशीन को रन कर पाओगे, राइट। अगर काली चला करके देखो, अगर काली स्मूथली रन नहीं करता तो यू कैन यूज़ पैरट, बिकॉज पैरट टेक्स लेस रिसोर्सेज, तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है। सो लेट्स ट्राई टू लॉग इन इनटू आवर विंडोज़। सो हियर इज़ आर विंडोज़, एंड इसका पासवर्ड अभी 1234 है, एंड यहाँ पर सिंपली मैंने लॉग इन कर लिया है, एंड दिस इज़ आर विंडोज़ 7 PC राइट नाउ ओवर हियर। तो यहाँ पर अभी विंडोज़ चल रहा है, and उसके साथ साथ Kali is running over here, so you can see 2 operating systems are running, and that's the power of virtual machine। मैं कभी भी अपने Windows 10 पे भी वापस आ सकता हूँ simply, and I can basically switch to Windows 7 और switch to Kali, and again you can see virtual machine यहाँ पर हम देखें तो अब 12 GB यूज़ हो चुका है, तो अभी भी 3.3 GB अवेलेबल है, राइट। सो यू कैन सी 16 GB रैम, दैट्स वाई आई एम यूजिंग, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मतलब ईजी हो जाता है ये सारा कुछ करना, राइट। So let's go back to our virtual machine. Which things is more essential for VM? More essential in the sense, it अगर हार्डवेयर पे आप पूछ रहे हो तो जो सबसे ज़्यादा एसेंशियल चीज़ है दैट्स योर CPU,
राइट। आपका सीपीयू जितना स्ट्रांग होगा उतना इजीली आप वीएम को हैंडल कर पाओगे, और वीएम उतना ही ज़्यादा स्मूथ चलेगा। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है तो वो वीएम और ज़्यादा स्मूथ होता जाएगा, राइट। सो या हियर वी हैव दिस थिंग। और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग डायरेक्ट अटैक करने वाले हैं, राइट। सो हम अटैक करने के लिए वी वुड बी डूइंग आर अटैक इन दिस टर्मिनल ओवर हियर। और ये टर्मिनल क्या होता है, दिस इज़ अ कमांड लाइन टूल। जैसे आपके पास सीएमडी होता है, कमांड प्रॉम्प्ट होता है, जो सबने देखा ही होगा बचपन से, जैसे सीएमडी होता है विंडोज़ के अंदर, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास टर्मिनल होता है। टर्मिनल के अंदर आप सारे के सारे कमांड्स डालते हो, राइट। इट्स बेसिकली अ शेल। अब अगर आप ये पूछते हो कि शेल क्या होता है, सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, राइट। एक बहुत सिंपल सा टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझ में आनी चाहिए जब भी आप हैकिंग के अंदर, साइबर सिक्योरिटी में आते हो, दैट देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड एज कर्नल। तो कर्नल क्या होता है कि कर्नल पूरा एक लेयर होता है, राइट। पूरा एक लेयर होता है विच हैंडल्स द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये पूरा आपका हार्डवेयर है, आपका रैम सीपीयू वगैरह नीचे लगा हुआ है, एंड देन योर सॉफ्टवेयर दैट इज़ योर काली, right, that means your kali linux. So your kali linux is installed on it. तो अभी क्या हो रहा है, कर्नल इज जस्ट वन लेयर बिटवीन द सेम। क्या हो रखा है कि काली ने एक कर्नल डेवलप कर रखा है अपना खुद का, जिसके थ्रू वो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि भाई रैम में ये चीज़ भेजनी है, सीपीयू में ये चीज़ भेजनी है, रैम में ये काम करना है, ये चीज़ करनी है, सीपीयू हार्ड डिस्क से ऐसे ऐसे चीज़ें उठानी है। सो that is what we are doing, right? Kali is basically an operating system, and the operating system consists of both the kernel and Kali, ठीक है। और कर्नल और काली दोनों के दोनों चीज़ें ये बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। विंडोज़ में अगर देखोगे तो विंडोज़ में क्या होता है कि विंडोज़ तो होता ही है, विंडोज़ के नीचे देन एक लेयर होती है इंजन की, राइट, जो उसको स्मूथली रन करने के लिए बना होता है। देन इंजन के नीचे ड्राइवर्स होते हैं, अलग अलग चीज़ के ड्राइवर्स होते हैं। सो यू कैन सी एक ड्राइवर माउस का, एक ड्राइवर वाईफाई का, एक ड्राइवर कीबोर्ड का, देन यू हैव ड्राइवर्स फॉर योर सीपीयू, ड्राइवर रैम का, मदरबोर्ड का ड्राइवर, डिस्प्ले का ड्राइवर, कीबोर्ड का ड्राइवर, अगर आप पेन ड्राइव प्लग कर रहे हो तो पेन ड्राइव का ड्राइवर, हर चीज़ का ड्राइवर लगता है उसमें। इसलिए मैंने छोटे छोटे ड्राइवर्स का बॉक्स बनाया, और इसके नीचे हार्डवेयर होता है। सो यू माइट हैव फेस्ड इशू इन योर वाईफाई। कितने लोगों ने अब वाईफाई का इशू फेस किया है, विंडोज़ 10 में वाईफाई कनेक्ट नहीं हो पाता? कई बार किया होगा, बिकॉज विंडोज़ 10 में बहुत बड़ी दिक्कत है दैट कई बार आप चाहे किसी भी वर्जन में चले जाओ, विंडोज़ 10 के कुछ वर्जन्स के अंदर वाईफाई का कनेक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। सो वो क्यों होता है, बिकॉज देयर इज़ दैट वाईफाई ड्राइवर वाला प्रॉब्लम। सो वो ड्राइवर सपोर्ट नहीं करता। तो विंडोज़ के अंदर ही स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है ड्राइवर्स का, बट यहाँ पर हमें एक पूरा कर्नल मिलता है, राइट। सो whenever we basically do this thing, right, हम लोग जब भी काली या लिनक्स का यूज़ करते हैं तो लिनक्स इज क्रिएटेड विथ मच मोर एफिशिएंसी। इतने ड्राइवर्स और इंजन को उन्होंने एक ही लेयर में पैक कर दिया है, एक कर्नल के अंदर। एंड जब आपको इंस्ट्रक्शन भेजना होता है, राइट, काली को कर्नल को जब इंस्ट्रक्शन भेजना होता है कि भाई अब ये करना है, तो यू सेंड दिस इंस्ट्रक्शन थ्रू अ टर्मिनल, राइट, थ्रू अ सिंपल शेल बेसिकली। और इस शेल को ही टर्मिनल बोलते हैं। जो आप यहाँ पर देख रहे हो टर्मिनल जो हमने अभी खोल रखा है, ये जो कमांड हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं, इसको बेसिकली शेल कमांड बोलते हैं, जो हम यहाँ लिखेंगे। एंड दीज कमांड्स डायरेक्टली सेंड द इनपुट टू कर्नल। ये डायरेक्टली कर्नल को इनपुट भेजता है, और कर्नल आगे हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई ये काम कर करके ये चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले पे ऐसे ऐसे दिखानी है, राइट। सो दैट इज़ वॉट द मेन थिंग ऑफ हाउ काली बेसिकली वर्क्स, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे सारा कुछ लिखेंगे, और इसी के थ्रू हम लोग पूरा का पूरा कनेक्शन बनाएंगे। सो यहाँ पर एक टूल आता है MSF कंसोल। नाउ MSF कंसोल का हम लोग यूज़ करने वाले हैं, और सिर्फ 3 स्टेप्स के अंदर अंदर, सिर्फ 3 स्टेप्स के अंदर हम लोग पूरा विंडोज़ हैक कर देंगे। जस्ट 3 कमांड्स, राइट। सो यू कैन काउंट। नंबर 1, हमने यहाँ पे MSF कंसोल पहले एंटर करना है, MSF कंसोल को यहाँ पर खोलना है। सो मैंने एंटर किया MSF कंसोल, और दिस इज कॉल्ड एज मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क कंसोल। तो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क कंसोल ऐसा क्या होता है, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क कंसोल एक ऐसा टूल है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर बहुत सारे पेलोड्स और बहुत सारे एक्सप्लॉइट्स हैं, राइट। अब एक्सप्लॉइट क्या होते हैं और पेलोड क्या होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मतलब अब देखो, धीरे धीरे जैसे जैसे हम अंदर जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें एक नई नई चीज़ दिखती जा रही है। तो MSF कंसोल एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर ऐसी एबिलिटी है, ऐसी काबिलियत है कि ये बहुत सारे सिस्टम्स को हैक कर सकता है। ये विंडोज़ को हैक कर सकता है, ये एप्पल को हैक कर सकता है, ये एंड्रॉयड को कर सकता है, आईफोन्स को कर सकता है, इवन लिनक्स को भी हैक कर सकता है।
राइट। सो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को हैक करने की एबिलिटी, क्षमता है। एंड ये सारी चीज़ें हैक होती है कुछ अलग अलग मॉड्यूल्स के थ्रू। उसमें से एक मॉड्यूल होता है एक्सप्लॉइट और एक होता है पेलोड। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे 2200 कुछ पेलो एक्सप्लॉइट्स अवेलेबल है और 950 के अराउंड पेलोड्स अवेलेबल है। राइट। सो 951 पेलोड्स एंड 2253 एक्सप्लॉइट्स आर अवेलेबल। और ये जो एक्सप्लॉइट्स और पेलोड्स अवेलेबल हैं, इन्हीं के थ्रू मैं डायरेक्टली हैक कर सकता हूँ और मैं डायरेक्टली चीज़ों को कर सकता हूँ। अभी एक्सप्लॉइट और पेलोड में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, एक्सप्लॉइट और पेलोड होते क्या हैं? अगर एक नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में हम समझे तो ऐसा मान लेते हैं कि अगर किसी के घर में चोरी हो रही है, लेट्स से कि एक घर में चोरी हो रही है, बर्गलरी गोइंग ऑन, एंड चोर जो है वो घर के अंदर खिड़की से आता है। राइट। सो विंडो के थ्रू अगर चोर आ रहा है और उसको विंडो खोलनी है, तो वो विंडो खोलने के लिए कोई टूल का यूज़ कर रहा है। तो जो टूल है, दैट विंडो इज़ बेसिकली द एक्सप्लॉइट। ठीक है, मतलब विंडो क्या है? विंडो हमारी वल्नरेबिलिटी हो गई, और विंडो को खोलने के लिए जिस टूल का यूज़ किया जा रहा है वो है एक्सप्लॉइट। ठीक है। और जब चोर अंदर आ जाएगा तो उसके पास एक बैग होगा, उस बैग के अंदर वो सामान भर करके लेकर जाएगा, तो वो बैग जो है वो पेलोड है। ठीक है, मतलब एक्सप्लॉइट और पेलोड हैंड इन हैंड काम करते हैं। आप एक्सप्लॉइट तो कर दोगे चीज़ को, आप किसी सिस्टम के अंदर तो चले जाओगे, लेकिन उससे डेटा निकालने के लिए, लूट लूट को अपने पास लेकर आने के लिए, ठीक है, उसको हम बेसिकली पेलोड कहते हैं। ठीक है। तो पेलोड इज समथिंग विच गिव्स यू द डेटा एंड एक्सप्लॉइट इज समथिंग विच लेट्स यू इनसाइड सम मशीन। मशीन के अंदर एक्सेस दिलाता है एक्सप्लॉइट, और मशीन के अंदर से डेटा उठाने का काम करता है पेलोड। समझ में आया एक्सप्लॉइट और पेलोड के बीच का डिफरेंस? यस या नो बोल देना चैट्स में एक बार। इतना समझ में आया यहाँ तक हमने जितना कवर किया? एक्सप्लॉइट्स एंड पेलोड्स एंड लिनक्स के अंदर, मेटास्प्लॉइट के अंदर हम लोग आ चुके हैं। ठीक है। सो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, एक छोटा सा डायग्राम भी बना लेते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। सो वी हैव दिस थिंग, राइट। अभी हमारे पास क्या है कि ये हमारा काली मशीन है ओवर हियर, राइट। एंड देन हम यहाँ पर बना लेते हैं अपना हैक, अपना विक्टिम। सो दिस इज़ आर विक्टिम। ठीक है, ये जो विक्टिम है ये विंडोज़ पे अपना काम कर रहा है मस्त। ठीक है। सो अभी हो क्या रहा है, दैट वी हैव दिस, व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर इज़ दैट हमने यहाँ पर एक एक्सप्लॉइट जनरेट किया। राइट, वी बेसिकली जनरेटेड एन एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट इज़ नथिंग, बस एक सिंपल सा कोड है, और वो कोड यहाँ पर हमने इंजेक्ट कर दिया। राइट, बिकॉज हमें क्या है कि हमें ना विंडोज़ का सब कुछ पता है फिलहाल। लेट्स से कि हमें विंडोज़ का आईपी एड्रेस पता है, तो हमने विंडोज़ को डायरेक्टली भेज दिया। अब हर विंडोज़ के बाहर ना एक लाइन ऑफ डिफेंस होता है। ठीक है, क्या होता है? जस्ट अ सेक। ओके, सो रियली सॉरी, आई गेस सम होस्ट गलती से एंड पे क्लिक हो गया। सो या, वी कैन कंटिन्यू विद द सेशन। Where were we? Let me share the screen. My voice is audible, right? Other people are joining as well. Please let me know in the chats if my voice is audible. Okay, cool. So everybody is here. We can just start once again.
हाँ, तो हम लोग यहाँ पर थे, आई गेस द स्क्रीन इज विजिबल। ओके, सो या वी वर बेसिकली टॉकिंग अबाउट दिस कि अभी हमने क्या किया कि एक स्क्रिप्ट को जनरेट किया, और इस स्क्रिप्ट जनरेट करके हमने बेसिकली इसके ऊपर डायरेक्टली हमने भेज दिया, राइट। तो यहाँ पर हमने जो ये स्क्रिप्ट जनरेट किया, स्क्रिप्ट जनरेट करके हमने डायरेक्टली विंडोज़ को भेजा, और विंडोज़ को भेजने के बाद वी हैव बेसिकली गॉट दिस थिंग, राइट। सो हमने यहाँ पर सी वी वर टॉकिंग अबाउट कि विंडोज़ के बाहर एक लाइन ऑफ डिफेंस होता है, राइट। सो यहाँ पर वी हैव दिस लाइन ऑफ डिफेंस ओवर हियर। सो दिस लाइन ऑफ डिफेंस इज बेसिकली कॉल्ड एज फायरवॉल। अब ये फायरवॉल ना कुछ कुछ चीज़ों को अलाउ करता है अंदर जाने से, एंड विंडोज़ के ऊपर एक बहुत पुराना जो है एक एप्लीकेशन है विंडोज़ फायरवॉल के ऊपर जो काम कर रहा है, दैट इज़ कि अगर आप विंडोज़ को कनेक्ट करना चाहते हो प्रिंटर्स के साथ, या फिर आप विंडोज़ को कनेक्ट करना चाहते हो किसी भी दूसरे ऐसे प्रोटोकॉल के साथ जो बेसिकली काम करे एक दूसरे के साथ जुड़ करके, एंड टीसीपी प्रोटोकॉल के ऊपर काम करके, बेसिकली लेमन लैंग्वेज में एक कंप्यूटर को 10-15 कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, या फिर एक कंप्यूटर को प्रिंटर या किसी थर्ड पार्टी डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया था, और वो प्रोटोकॉल जो है वो उसके अंदर बेसिक वल्नरेबिलिटी निकली थी। तो ये जो प्रोटोकॉल था हमारा फायरवॉल विंडोज़ का, बाय डिफ़ॉल्ट उस प्रोटोकॉल के अंदर सारी चीज़ों को इनबाउंड सारे जो कितने भी कनेक्शंस आना चाह रहे हैं सबको अलाउ करता है। तो ये जो फायरवॉल है इसके अंदर एक स्पेसिफिक वे बना हुआ है दैट यू कैन बेसिकली एंटर फ्रॉम हियर। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने जो ये स्क्रिप्ट लिखी है, ये स्क्रिप्ट इसी तरीके से लिखी गई है कि ये डायरेक्टली इस प्रोटोकॉल के अंदर से हमारे विंडोज़ के अंदर एंटर करेगी। तो यहाँ से हमारी स्क्रिप्ट आकर के विंडोज़ के अंदर एंटर कर जाती है, और जैसे ही एंटर करती है तो ये स्क्रिप्ट जा कर के एक बैकएंड क्रिएट करने लगती है, राइट। एक बैकएंड क्रिएट हो जाता है, और एक बैकडोर क्रिएट हो जाता है बेसिकली, ठीक है। बैकडोर जब क्रिएट हो जाता है तो बैकडोर क्रिएट होने के बाद हमें डायरेक्टली उस बैकडोर से कनेक्शन वापस आता है, एंड नाउ वी नो दैट वी हैव हैक्ड इनटू द विंडोज़। तो ये जो स्क्रिप्ट भेजने का काम है, ठीक है, दिस इज़ बेसिकली व्हाट आर एक्सप्लॉइट डज। ये काम होता है हमारे एक्सप्लॉइट का। तो ये जो एक्सप्लॉइट है, ये एक्सप्लॉइट का मेजर काम है कि ये स्क्रिप्ट बेसिकली जो हमने भेजी है, और फायरवॉल को यहाँ पर हम बेसिकली उल्लू बना करके अंदर घुसते हैं। फायरवॉल को बेसिकली हम लोग यहाँ पर वी मेक फूल ऑफ फायरवॉल, और फायरवॉल को हम लोग जब यहाँ पे बाईपास करके जैसे ही अंदर आते हैं, दिस इज़ व्हाट आर एक्सप्लॉइट डज। कुछ नहीं करना, सब कुछ ऑटोमेटेड है, राइट। फायरवॉल को जैसे ही ये बाईपास करके अंदर आता है तो वैसे ही अंदर एक बैकडोर क्रिएट होता है, और फिर हमें यहाँ पे एक पेलोड कनेक्शन मिल जाता है, राइट। तो ये जो पेलोड कनेक्शन है दैट इज़ बेसिकली द कनेक्शन दैट इज़ गिविंग मी द एक्सेस बैक, ठीक है, जिसके थ्रू मेरे को वापस एक एक्सेस मिल रहा है। बट एक बहुत ज़रूरी चीज़ याद रखना, ये अटैक करने से पहले हमें विंडोज़ का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। अगर आईपी एड्रेस नहीं पता तो हम डायरेक्टली कनेक्शन नहीं ले पाएंगे, डायरेक्टली कनेक्शन नहीं बना पाएंगे, राइट। सो वी नीड एक्सप्लॉइट एंड वी नीड पेलोड, ये दोनों चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, हमारे पास सामने वाले का आईपी एड्रेस होना चाहिए। आईपी एड्रेस नहीं है तो ईएक्सी वाला मेथड यूज़ होगा, ठीक है। आप ईएक्सी बना करके भेज दो, और कोई भी जो भी क्लिक करके इंस्टॉल करेगा उसका एक्सेस हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है जो हमने अभी देखा। तो नाउ वी नीड द एक्सप्लॉइट एंड वी नीड द पेलोड। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क हम लोग खोल चुके थे, तो अब एक्सप्लॉइट और पेलोड को यहाँ पर डालते हैं। सो एक्सप्लॉइट का नाम है, यहाँ पर एक्सप्लॉइट को यूज़ करने के लिए जो सिंटेक्स होता है उसका सिंटेक्स होता है यूज़ एक्सप्लॉइट, ठीक है। नाउ एक्सप्लॉइट का पूरा नाम हमें यहाँ पर लिखना है, बेसिकली उसकी लोकेशन लिखनी है। तो एक्सप्लॉइट ना यहाँ पर होता है विंडोज़ फोल्डर के अंदर, और इसके अंदर SMB करके एक फोल्डर होता है उसके अंदर, एंड द एक्सप्लॉइट इज कॉल्ड एज MS17_, लेट मी सी। अच्छा, यहाँ पे हमने एक्सप्लॉइट की स्पेलिंग गलत लिख दी, एक्सप्लॉइट विंडोज़ SMB, and then we call it MS17010 eternal blue. So this is the name of exploit. इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो सो दैट आपको भी याद रहे बाद में। यूज़ exploit/windows/smb/ms17010 eternal blue, ये नाम है हमारे एटर्नल ब्लू अटैक का, एक्सप्लॉइट का, जिसके बारे में हमने बिल्कुल शुरुआत में बात करी थी। दैट एटर्नल ब्लू उस पर्टिकुलर अटैक का नाम था जिसने रैंसमवेयर को जन्म दिया था, वॉनाक्रा रैंसमवेयर को जन्म दिया था, राइट। बिकॉज इसी के थ्रू वो हैकर्स एक्सेस ले पा रहे थे अलग अलग विंडोज़ का।
तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सिंपली एंटर कर दूंगा। जैसे ही मैंने एंटर किया, यू कैन सी कि उसने ऑटोमेटिकली एक पेलोड भी यहाँ पर कन्फिगर कर दिया, राइट। और ये पेलोड अगर ध्यान से देखोगे, सो दिस इज द पेलोड, राइट। पेलोड क्या है? पेलोड इज विंडोज x64 मेटापेटर रिवर्स टीसीपी। अब एक बार और समझते हैं कि एक्सप्लॉइट और पेलोड था क्या था। मैंने बताया था कि एक्सप्लॉइट का मतलब था जो एक्सेस लेगा, पेलोड का मतलब जो हमें फाइल्स ला कर देगा अंदर से, ठीक है। मतलब जिस चीज़ के थ्रू हम सिस्टम में एक्सेस लेंगे उसको एक्सप्लॉइट कहते हैं, और एक्सप्लॉइट होने के बाद हम उस सिस्टम के साथ क्या क्या कर सकते हैं, उसके फाइल्स को लेकर के इनक्रिप्ट कर सकते हैं, उसका पासवर्ड ब्रेक कर सकते हैं, उसका पासवर्ड देख सकते हैं, उसका लेट्स से कि उसकी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं, वो सारा काम पेलोड का है, ठीक है। तो एक पेलोड और एक एक्सप्लॉइट दोनों चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले एक्सप्लॉइट को यूज़ करने का कमांड लिखा कि भाई मेरे को ये वाला एक्सप्लॉइट यूज़ करना है। और एक्सप्लॉइट का पूरा नाम ये होता है, मतलब एक बेसिक एक्सप्लॉइट जो आप यूज़ करना चाहते हो, सिंटेक्स इज यूज़ एक्सप्लॉइट, और फिर आगे आता है कौन सा एक्सप्लॉइट यूज़ करना है। सो एक्सप्लॉइट का लोकेशन हमें देना होता है। विंडोज़ करके एक फोल्डर है, उसके अंदर एसएमबी फोल्डर है, उसके अंदर MS-17 एटर्नल ब्लू एक्सप्लॉइट पड़ा हुआ है, उसको हमने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया। तो दिस इज़ द बेसिक फॉर्मेट कि हम एक्सप्लॉइट कैसे बताएंगे मेटास्प्लॉइट को। जैसे ही उसको एक्सप्लॉइट मिला, वैसे ही उसने एक पेलोड उसी के मतलब का, उसी के रिलेटेबल पेलोड उसने ऑटोमेटिकली कन्फिगर कर दिया। अब अगर पेलोड का भी मतलब देखने जाओगे तो बहुत सिंपल है। विंडोज़ को हैक करना है, 64 बिट विंडोज़ को हैक करना है, ठीक है। मेटास्प्लॉइटर जो है वो पेलोड का नाम होता है, तो इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेटास्प्लॉइट का एक सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा इनबिल्ट पेलोड है जिसका नाम मेटास्प्लॉइटर है। और फिर इस मेटास्प्लॉइटर के साथ मैं क्या करना चाहता हूँ, एक रिवर्स टीसीपी कनेक्शन लेना चाहता हूँ। रिवर्स टीसीपी का मतलब क्या हुआ, वो जो डायग्राम हमने अभी बनाया था उसके अकॉर्डिंग अगर समझोगे तो हमें एक रिवर्स कनेक्शन मिल रहा है। ये येलो वाला लाइन देखो, हमें वहाँ से एक रिवर्स कनेक्शन मिल रहा है। सो वी नीड अ रिवर्स कनेक्शन, ठीक है। और ये रिवर्स कनेक्शन शुड बी वर्किंग ऑन टीसीपी प्रोटोकॉल, बिकॉज टीसीपी प्रोटोकॉल या टीसीपी पैकेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्टेबल और बहुत ज़्यादा रेलिवेंट, मतलब हमें एक स्टेबल कनेक्शन मिलेगा, हमें एक सिक्योर कनेक्शन मिलेगा। तो दैट्स वाई वी यूज़ टीसीपी, ठीक है। तो टीसीपी हो गया, और रिवर्स टीसीपी मतलब पूरा लिखने का मतलब है कि एक रिवर्स टीसीपी कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग रिवर्स कनेक्शन, स्टेबल रिवर्स कनेक्शन हमें चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा मेटास्प्लॉइटर/रिवर्स टीसीपी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेलोड। अगर गलती से किसी का पेलोड ऑटोमेटिक कन्फिगर ना हो या फिर कुछ और कन्फिगर हो जाए तो बहुत सिंपल है, खुद से भी पेलोड कन्फिगर कर सकते हैं। जस्ट सिंपली राइट दिस सेट पेलोड, राइट, और फिर वही पूरा नाम लिख दो पेलोड का, Windows/x64। अगर 32 बिट टारगेट है आपका तो ये चीज़ स्किप कर सकते हो, अगर 64 बिट टारगेट है तो x64 लिखना ज़रूरी है। अभी कैसे पता चलेगा कि टारगेट 64 बिट है या कौन सा है, उसके लिए वी हैव आर nmap एंड पूरा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का सेशन है, तो उसमें पूरा हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो मेटास्प्लॉइटर/रिवर्स टीसीपी, ठीक है। तो वही वाला पेलोड मैंने देखो फिर से कन्फिगर कर दिया। तो इसको मैनुअली भी कर सकते हो, वैसे ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बट मैनुअली भी अगर करना चाहो तो यू कैन डू दैट थिंग, राइट। एक बार पेलोड कन्फिगर हो गया, उसके बाद हमें देना है विक्टिम का आईपी एड्रेस। तो यू कैन सी हमारे 2 स्टेप पूरे हो चुके हैं, ठीक है। नंबर 1 एक्सप्लॉइट हो गया, नंबर 2 पेलोड हो गया, ठीक है। तीसरा कमांड हमें विक्टिम का आईपी एड्रेस देना है। तो विक्टिम का आईपी एड्रेस हमें पहले से ही हमारे पास होना चाहिए, तभी हम लोग इस को कर सकते हैं। तो विक्टिम का आईपी एड्रेस भी देख करके आते हैं एक बार। ये हमारा Windows 7 है, और इसके अंदर व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन जस्ट चेक द आईपी एड्रेस। तो यहाँ पर आईपी कॉन्फ़िग से इसका आईपी चेक कर लेते हैं क्या है। सो इसका आईपी है फ़िलहाल 192.168.1.11, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मैं आईपी दे देता हूँ अंदर जा कर के। लेट मी गो हेड विद सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सेट एल होस्ट करूँगा, बिकॉज एल होस्ट का मतलब होता है विक्टिम का आईपी एड्रेस, ठीक है। सेट एल होस्ट 192.168.1.11। दो तरीके के होस्ट होते हैं, एक एल होस्ट होता है, एक आर होस्ट होता है। आर होस्ट का मतलब आपका आईपी एड्रेस, एल होस्ट मतलब विक्टिम का आईपी एड्रेस, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। एल होस्ट मतलब आपका आईपी एड्रेस एंड आर होस्ट मतलब विक्टिम का आईपी एड्रेस, ठीक है। सो ये इस तरीके से होता है। देयर आर 2 होस्ट। एल होस्ट मीन्स लोकल होस्ट, दैट मीन्स योर आईपी एड्रेस, कि आपका आईपी एड्रेस क्या है,
जो ऑटोमेटिकली पेलोड ने सेट कर रखा है कि रिवर्स कनेक्शन कहाँ वापस आएगा, और आर होस्ट मतलब किसको एक्सप्लॉइट हम भेजना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे उसका आईपी एड्रेस आएगा। अभी मैं अपने इंटरनल नेटवर्किंग के अंदर ये काम कर रहा हूँ तो काफ़ी आराम से हो जा रहा है। अगर आपको किसी बाहर वाले का हैक करना है, फॉर एग्जांपल जो आपके वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है या आपके हॉटस्पॉट से कनेक्टेड नहीं है, आप उसे हैक करना चाहते हो, तो आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ेगी। एक अच्छी पोर्ट फॉरवर्डिंग, अच्छी क्वालिटी पोर्ट फॉरवर्डिंग करने के लिए यू हैव टू ओन अ राउटर। अगर आपके पास राउटर है तो राउटर की सेटिंग्स में जाकर के पोर्ट फॉरवर्डिंग आराम से हो जाती है। नहीं तो यू कैन यूज़ टूल्स लाइक ngrok, क्लाउडफ्लेयर का यूज़ करके आप खुद से पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हो, राइट। सो देर आर लाइक टू मेथड्स। मैनुअली करनी हो तो मैनुअली भी हो सकती है, राउटर के थ्रू करनी है तो राउटर के थ्रू भी हो सकती है पोर्ट फॉरवर्डिंग, राइट। पोर्ट फॉरवर्डिंग से वी हैव द एडवांटेज कि अगर हमारे नेटवर्क में कोई नहीं है तो हम उसको भी हैक कर सकते हैं। करंटली मैं अपने ही नेटवर्क में कर रहा हूँ तो मेरे को पोर्ट फॉरवर्डिंग की ज़रूरत है नहीं, तो मैंने यहाँ पर सिंपली एंटर दिया और आर होस्ट मेरा सेट हो गया। जैसे ही आर होस्ट सेट हो गया एंड एवरीथिंग हैज़ बीन सेट, द नेक्स्ट स्टेप इज सिंपली टू टाइप इन रन। ठीक है, जैसे ही मैं रन टाइप करूँगा वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली इसको रन कर देगा प्रोग्राम को, और स्क्रिप्ट को, एक्सप्लॉइट को भेज देगा वहाँ पर, राइट। अब अगर हम लाइन ऑफ डिफेंस को तोड़ के जा पा रहे हैं, अगर हम फायरवॉल को तोड़ करके अंदर जा पा रहे हैं, अगर हमें वो एसएमबी का एक्सप्लॉइट मिल रहा है, तभी हम लोग इस अटैक को सक्सेसफुली रन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक्सप्लॉइट क्या करेगा, सबसे पहले तो देखेगा कि क्या पॉसिबिलिटी है उसको हैक करने की, क्या वहाँ पे फायरवॉल सही से इनेबल्ड है, गलत तरीके से इनेबल्ड है। अगर फायरवॉल गलत तरीके से इनेबल्ड है दैट मीन्स कि हम अंदर जा सकते हैं, अगर सही से इनेबल्ड है तो हम अंदर नहीं जा पाएंगे और ये मना कर देगा कि यू कैन नॉट अटैक। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली रन कर दूंगा और ये ऑटोमेटिकली ट्राई करेगा। तो अभी देखो इसने यहाँ पे ट्राई करना शुरू किया और यहाँ पे स्कैनर लगा दिया, और स्कैनर लगाने के बाद मेरे को पता चला कि होस्ट इज़ लाइकली वल्नरेबल टू द अटैक, और उसने ये भी बता दिया कि कौन सा विंडोज़ वहाँ काम कर रहा है। तो वहाँ पे काम कर रहा है मेरा विंडोज़ 7 अल्टीमेट एडिशन, एंड यहाँ पे मेरे को पता चला द टारगेट इज़ वल्नरेबल, तो डैट मीन्स आई कैन गो अहेड। उसके बाद यहाँ पे पता चलता है कि कनेक्टिंग द टारगेट फॉर एक्सप्लॉयटेशन, और उसके बाद यहाँ पर टारगेट वाज सेलेक्टेड एंड सब कुछ यहाँ पर सेलेक्टेड है। कोर रॉ बफर डंप, यहाँ पे एक रॉ बफर डंप भेजा गया, और यहाँ पे बफर भी यहाँ पर है कि बफर में क्या क्या डेटा भेजा गया है। देन 12 ग्रूम एलोकेशंस का इसके अंदर यूज़ हुआ है। अभी ग्रूम एलोकेशंस क्या होते हैं, बफर डंप क्या होता है, कोर रॉ बफर डंप, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग्स, एंड ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, जो एक्सप्लॉइट पैकेट्स हैं, ये क्या होते हैं, ये DCE RPC रिप्लाई क्या होता है, दीज आर वेरी दीज आर द टर्म्स। ये जब ये इनका मतलब तब पता लगेगा जब आप लिटरली काफ़ी ज़्यादा नॉलेज ले चुके होगे मालवेयर एनालिसिस की एंड हाउ द थिंग्स बेसिकली वर्क, राइट। तो जैसे क्वेश्चन पूछा है शुभ शुभ व्हाट्स योर नेम, इट्स शुभान, राइट। सो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है, यू कैन क्रिएट बैच फाइल्स के अंदर आप एक्सप्लॉइट बना सकते हो। हाँ बिल्कुल, बैच फाइल्स के अंदर बन सकते हैं, रूबी के अंदर बन सकते हैं, और पाइथन के अंदर भी बन सकते हैं, बैश के अंदर भी बन सकते हैं। तो ये एक्सप्लॉइट्स को बनाने के लिए यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक बफर ओवरफ्लो अटैक हो रहा है, जो बेसिकली बफर ओवरफ्लो का मतलब एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, दैट आप किसी भी रैम की लोकेशन को ओवरफ्लो करके किसी और लोकेशन पे पहुंच करके आप डायरेक्टली सिस्टम का एक्सेस लेते हो। तो आप रैम से पूरे सिस्टम का एक्सेस ले रहे हो। ठीक है, रैम के अंदर गलत लोकेशन पे जाकर के आप गलत एप्लीकेशन को, अपने एप्लीकेशन को गलत लोकेशन पे डाल करके यू आर टेकिंग द एक्सेस ऑफ द सिस्टम। कुछ इस तरीके का बफर ओवरफ्लो होता है, और बफर ओवरफ्लो को समझने के लिए लिटरली हमें 1 घंटा अलग से चाहिए, जिसमें हम पूरा बफर ओवरफ्लो अटैक को स्टडी कर पाएंगे कि वो क्या होता है, किस तरीके का होता है। तो बफर ओवरफ्लो अटैक करते वक्त हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि बार बार ट्राई करना पड़ता है, क्योंकि एक बार ओवरफ्लो कर दिया, शायद उसके अंदर कुछ ऐसा हो कि वो अटैक सही से ना हो, तो हम फिर से करते हैं। उसी को हम ग्रूम एलोकेशन कहते हैं। तो अगर होता क्या है कि 3 बार अगर आप करते हो तो उसमें पूरी एश्योरिटी हो जाती है कि तीनों बार में आपको मिल ही जाएगा एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर फिर भी ये जो फ्रेमवर्क है ये 12 ग्रूम एलोकेशन भेज रहा है, दैट मीन कि ये 12 टाइम्स ट्राई कर रहा है कि आपको 12 कि आपको बेसिकली एक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। इसके ट्राई करने से हमें मिलता है विन विन सिचुएशन, दैट मीन्स वी आर बेसिकली हैविंग वी हैव बेसिकली करप्टेड द बफर, और एक बार बफर करप्ट हो गया तो उसके बाद फिर आप एग भेज करके, दैट मीन्स कि आप एक यू नो डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिफरेंट एप्लीकेशन भेज करके, जो भी हमने स्क्रिप्ट के थ्रू भेजा है, जो भी हमने किया है, वहाँ पर हम एक्सेस ले सकते हैं सिस्टम का। तो एक काफ़ी टेक्निकल चीज़ है यहाँ पर, इसको समझना चाहते हैं या ये रिकॉर्डिंग जो है अथर्व यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, आपको रात तक जो है मिल जाएगी ग्रुप्स पे, राइट। सो
या लेट मी जस्ट गिव यू अ लिंक, ठीक है. सो इन केस इफ़ यू वांट टू रीड फर्दर अबाउट दिस थिंग, राइट, अगर इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि यार ये चीज़ कैसे काम करती है, किस तरीके से काम करती है, सो लेट मी जस्ट गिव यू दिस थिंग. बफर ओवरफ्लो ऑफ पोर्ट 443, 445 and 139. Just a sec. So yeah, you can read this article and you can basically check out कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही है और किस तरीके से काम कर रही है. विंडोज़ का ही काफ़ी अच्छा आर्टिकल है एंड काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर क्लियर हो जाएंगी बेसिकली किस तरीके से इट्स बेसिकली वर्किंग एंड हाउ द थिंग्स आर बेसिकली देयर, राइट. सो या यू कैन सी जैसे ये सब कुछ होता है उतने में ही मेरे को एक्सेस भी मिल चुका है लास्ट में मेटर का. एंड इफ़ आई सिंपली टाइप दिस इन्फो तो यहाँ पे यू कैन बेसिकली सी दैट मेरे को विंडोज़ का एक्सेस डायरेक्टली मिल चुका है. और फिलहाल मैं कौन से फोल्डर में हूँ, आई कैन चेक दिस विथ PWD और प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी. सो यू कैन करेंटली सी दैट मैं अभी सिस्टम 32 में हूँ. लेट मी गो टू डेस्कटॉप, राइट. सो यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे चलते हैं, पहले तो सी पे चलते हैं एंड देन CD into यूज़र्स, राइट, and then CD into Sanchay, right, CD into desktop. So now I am currently on desktop of the Windows, right. You can see that मैं Windows के desktop पे हूँ और यहाँ पर अभी आप देखोगे नॉर्मली तो desktop पे कुछ भी नहीं है. बट यहाँ जाकर के if I simply just say कि मैंने फोल्डर बना दिया, let's name the folder as hacked, right, press enter and you can basically see that यहाँ पर hacked नाम का फोल्डर बन गया, राइट. सो दैट्स हाउ आई कैन बेसिकली डू ऑल द थिंग्स. और मैं इसके अलावा और क्या क्या कर सकता हूँ, राइट, सॉरी. इसके अलावा इफ़ आई टाइप इन हेल्प मेन्यू यू कैन सी कि मैं इसके विंडोज़ के सारे पासवर्ड्स का डेटाबेस निकाल सकता हूँ. मैं विंडोज़ के अंदर प्रिविलेज एस्केलेट करके एडमिन एक्सेस ले सकता हूँ, उसके अंदर ऑडियो फाइल प्ले कर सकता हूँ, वेबकैम का पूरा एक्सेस ले सकता हूँ, माइक का पूरा एक्सेस ले सकता हूँ, स्क्रीन शेयर या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले सकता हूँ, कीबोर्ड या माउस के इनपुट्स भेज सकता हूँ, रीड भी कर सकता हूँ. ऑल दी सिस्टम कमांड्स आई कैन रन. मैं नेटवर्किंग कमांड्स भी रन कर सकता हूँ. बाकी ये सारे फाइल सिस्टम कमांड्स हैं जिनको मैं रन कर सकता हूँ. तो इतना सारा एक्सेस है मेरे पास, राइट, इतना सारा एक्सेस है मेरे पास इस पूरी चीज़ का. और इतनी सारी चीज़ें अगर मैं कर पा रहा हूँ तो दैट इज़ व्हाट मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क इज़, ठीक है. तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम आपने देखा, दिस इज़ व्हाट एटर्नल ब्लू वाज. एंड इस तरीके से हम एटर्नल ब्लू से पूरा सिस्टम का एक्सेस डायरेक्टली ले सकते हैं. एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये चीज़ समझना, बिकॉज यू नीड टू चेक आउट कि सामने वाला जो PC है क्या वो वल्नरेबल है, राइट. जब आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने जाओगे किसी के भी PC के अंदर, तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू विल नोटिस कि क्या उसके अंदर ये वाला पोर्ट, ये वाली सर्विस, ये वाला फ्रेमवर्क ओपन है. अगर है तो आप एक्सेस लेकर देखो. अगर एक्सेस मिलता है इस तरीके से तो डैट मीन्स एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है डैट यू कैन देन यू नो जस्ट रिपोर्ट इट इन द रिपोर्टिंग मेथड. जो भी जिस भी तरीके से आप रिपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपनी रिपोर्ट में इसको इंक्लूड कर सकते हो. सो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है. एंड दिस इज़ हाउ वी डू ऑल द पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है. आप डायरेक्टली ऐसे वर्चुअल मशीन का यूज़ कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली किसी भी दूसरे मशीन्स का यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली जो आपके नेटवर्क में कनेक्ट हो सकती हैं. सो दैट्स हाउ यू कैन डू सिंपल पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड नो कि क्या क्या हो रहा है, राइट. सो the recording will be uploaded on YouTube. एंड इसका जो लिंक है YouTube का वो Discord और वहाँ हमारे WhatsApp ग्रुप्स पे शेयर कर दिया जाएगा. जो WhatsApp ग्रुप में नहीं है, आपको ईमेल आया होगा, उसमें WhatsApp ग्रुप का लिंक ज़रूर होगा. सो यू कैन जॉइन दैट WhatsApp ग्रुप फ्रॉम दैट लिंक, राइट. सो वहाँ दोनों जगह शेयर हो जाएगा. सो नो इश्यूज़ अबाउट दैट, ओके. What is bandwidth sharing and will it harm us in any way? Bandwidth sharing is a very different topic, right. बीफ के ऊपर सेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बीफ या आर्मिटेज जो है वो मेटास्प्लॉइट का ही एक GUI बेस्ड टूल है. सो अगर आप मेटास्प्लॉइट को मास्टर कर लोगे तो बीफ और आर्मिटेज की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है.
सो आई वुड सजेस्ट यू टू गो थ्रू विद मेटास्प्लॉइट, एंड मेटास्प्लॉइट को जितना मास्टर कर सकते हो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना कर लो. बाकी बीफ के ऊपर सेशन अगर हमें इफ़ वी गेट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट, सो वी विल हैव अ सेशन ऑन बीफ एज वेल. नो इश्यूज अबाउट दैट, बिकॉज जनरली हमारे सेशंस मेनली पोल्स के ऊपर होते हैं. जो हमारा फॉर्म है उसके अंदर एक पोल भी है दैट आपका मेजर टॉपिक कौन सा है, तो हम लोग उन्हीं के अकॉर्डिंगली वी हैव डिजाइंड ऑल द सेशंस. सो टुडे वाज द फर्स्ट सेशन, सिस्टम हैकिंग. अभी आगे आने वाले सेशंस पे हम लोग बग बाउंटी डिस्कस करेंगे, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग डिस्कस करेंगे, एंड हम लोग आने वाले सेशंस के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक सोशल मीडिया हैकिंग, वायरलेस हैकिंग वगैरह बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं. सो दिस विल गो टिल 20th ऑफ अक्टूबर. ठीक है, 20th ऑफ अक्टूबर रोज़ होंगे सेशंस 6 बजे. सो जस्ट स्टे इन द ग्रुप, एंड मेल्स सबको रेगुलरली आते रहेंगे. 4 बजे या 3 बजे आपको रोज़ मेल आ जाएगा वेबिनार के रिगार्डिंग, राइट. सो यू कैन बेसिकली ज्वाइन फ्रॉम दैट और यू कैन ज्वाइन फ्रॉम द ग्रुप, राइट. सो समझ में आया जो हमने किया आज, और जो जो भी लाइक हाउ टू टेक द एक्सेस और किस तरीके से किया जाता है, राइट. सो इफ़ यू हैव लर्न समथिंग न्यू टुडे, आज अगर कुछ नया सीखा हो, राइट, वी हैव 25 पीपल ओवर हियर, कुछ नया सीखा हो तो प्लीज़ येस बोलना, राइट. So that I can also know that yeah, you have got some value in your life, we have added some value in your life, right. And we are regularly adding the values to your life. That's really good that you guys have learned और यहाँ पर आए, right. Next 10 days boot camp जो होगा वो नवंबर के एंड में होगा, right. सुहास जो बूट कैंप होगा वो अगला नवंबर के एंड में होगा, नवंबर और दिसंबर. इट वुड बी द मेगा बूट कैंप, राइट. फॉर ऑल दोज गाइज हु डोंट नो अबाउट द बूट कैंप, उसके अंदर हम 2 घंटे का एक सेशन रखते हैं और वो 10 डेज लगातार चलता है, राइट. एंड दैट इज़ अ पेड इवेंट जिसके अंदर हम लोग गुडीज़ और सब कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह डायरेक्टली आपके घर सेंड करते हैं. एंड हैक एंड स्लैश का जो ये वेबिनार सेशन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और ये भी 10 दिन चलता है. बट इसके अंदर के जो टॉपिक्स है वो बहुत बेसिक होते हैं और बूट कैंप के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं, राइट. सो उसमें आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हो, एंड मोस्ट प्रोबेबली उसमें भी 30-35 लोग ही होते हैं हर बार, right. So let me go ahead with more of the things, as I said, something special, right. So you know, if you want to join our community or if you want to take the full course, जो live sessions हमारे चलते हैं, right. So उसके अंदर हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, हम लोग बेसिकली उसके अंदर एथिकल हैकिंग प्रोवाइड करते हैं, बग बाउंटी हंटिंग पूरे तरीके से प्रोवाइड करते हैं, VAPT एंड you know WAPT, right. Then we have Linux and Unix also there, because most of the people से कि सर मैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग शुरुआत कहाँ से करूँगा, आई एम अ बिगनर, हाउ टू स्टार्ट विद दिस थिंग. तो अगर आप बिगनर हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग सीखनी है, आपको लिनक्स सीखना है, एंड देन यू कैन कंटिन्यू फॉरवर्ड विद ऑल द सेशंस, राइट, ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग, बग बाउंटी हंटिंग एंड पेन टेस्टिंग. एक शुरुआत जो है, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप किसी भी बायो से हो या किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपको सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्किंग और लिनक्स से शुरुआत करना है. प्रोग्रामिंग से शुरुआत नहीं करनी है. अगर प्रोग्रामिंग से शुरुआत करोगे तो एक फंस जाओगे लूप में और आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे. तो अगर कोई बोलता है कि प्रोग्रामिंग आनी चाहिए हैकिंग से पहले, तो ऐसा कुछ नहीं है. नेटवर्किंग सीखो, लिनक्स सीखो, उसके बाद डायरेक्टली पेन टेस्टिंग करोगे तो समझ में आएंगी चीज़ें. तो यहाँ पे हम ये चारों चीज़ें तो कराते ही हैं. देन पेड प्रीमियम ई बुक्स भी प्रोवाइड कराते हैं, लाइव वीडियो सेशंस होते हैं, सारे के सारे सेशंस ऐसे ही लाइव हम लोग 1-1 घंटे की करते हैं यहाँ पर, जो हमारे शाम के 7 बजे 8 बजे से शुरू हो जाते हैं. देर आर करेंटली 3-4 बैचेस जो मैं खुद से ले रहा हूँ, राइट. देन देर आर अदर मेंटोर्स जो ऑफलाइन बैचेस भी ले रहे हैं, ऑनलाइन बैचेस भी ले रहे हैं. सो वी आर करेंटली इन दिल्ली इन ऑफलाइन मोड. तो अगर आप दिल्ली में हो तो आप ऑफलाइन आकर के भी विजिट कर सकते हो ऑफिस में, राइट. सो या जितने भी सॉफ्टवेयर्स और बाकी सारी चीज़ें वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग दैट. अगर मार्केट में इस कोर्स को देखने जाओगे प्रॉपरली तो ये इतने क्वालिटी कोर्सेज आपको मार्केट में 40, 60, 70, 80,000 के से कम के नहीं मिलेंगे. इवन सम कंपनीज गो टू 90,000 इन द मार्केट दैट वी हैव सीन इन दिल्ली एंड मुंबई एंड पुणे, राइट. अगर हम लोग बात करें तो हमने वेबसाइट पे हमारे कोर्स का प्राइस 20,000 ही रखा है और उस पर भी वी आर करेंटली गिविंग 25% डिस्काउंट, दैट इज़ 14,999, राइट. एंड इफ़ यू आर बेसिकली अ फाइनेंशियल एड स्टूडेंट, अगर आपको फाइनेंशियल एड की ज़रूरत है तो दिस वुड ऑल्सो इंक्रीज टू 50% और 55% डिपेंडिंग ऑन योर डॉक्यूमेंट्स, राइट. सो हम लोग फाइनेंशियल एड भी देते हैं. सो इफ़ यू वांट टू गो अहेड विद दैट, बिकॉज आई नो दैट this is the country where most of the people
कैन नॉट अफोर्ड दैट मच हायर अमाउंट, राइट. सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे EMI ऑप्शंस रखे हैं. दैट वुड बी ऑल्सो ऑन योर बेसिस, ठीक है. आप 2 या 3 महीने का EMI सेलेक्ट कर सकते हो. नो कॉस्ट EMI है, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है. एक बार हो जाता है देन यू कैन स्टार्ट योर कोर्स एनी टाइम. अगर आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेना है 2000 रुपीज़ आप दे करके यू कैन पे एंड यू कैन स्टार्ट विद अस, राइट, इन द कम्युनिटी. और जब कोर्स शुरू करना हो तब बाकी की 13,000 आप बाद में पे कर सकते हो. अदरवाइज आपको अभी स्टार्ट करना है, सो यू कैन जस्ट हैव 2 or 3 EMIs अकॉर्डिंग टू यू. जो पूरा कोर्स है वो 60 आवर्स का होता है, जिसके अंदर वी कवर एवरी थिंग, राइट. इफ़ यू नीड ऑल द डिटेल्स अबाउट द कोर्स, उसके अंदर क्या क्या है, 60 आवर्स में हर घंटे में क्या होता है. इफ़ यू नीड ऑल दैट curriculum, you can message the group admins on WhatsApp. They'll give you all the things over there, right. Moving ahead, that's all. No, right, because यहाँ पे सारे लाइफ टाइम सेशंस आपको दिए जाएंगे, राइट. जितना भी हम ऑफलाइन ऑनलाइन कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, एवरीथिंग इज देयर फॉर यू, राइट. विल ट्राई टू मेक यू द प्रोफेशनल, राइट. एंड ऑब्वियसली यहाँ पर जितने भी वेबिनार्स, जितने भी बूट कैंप्स आगे होते हैं, होने वाले हैं, पेड बूट कैंप्स जितने भी होते हैं, जितने लोग यहाँ पर ऑलरेडी हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, राइट, उन सब के लिए ये सारी चीज़ें फ्री होती हैं ऑलरेडी, राइट. सो कम्युनिटी का मेजर फील है. वाई? बिकॉज कम्युनिटी एक ऐसी जगह होती है, राइट, जहाँ पर आप ग्रो करते हो. वेयर बेसिकली यू ग्रो, यू आर प्रोडक्ट ऑफ योर इन्वायरमेंट, ठीक है. जैसी संगत वैसी रंगत. तो जितनी आपको यहाँ पे संगत मिलेगी, जिस तरीके के आपको यहाँ लोग मिलते हैं, जैसे आप इवन ऑनलाइन भी अगर आप पढ़ते हो या फिर ऑफलाइन पढ़ते हो, तो आपको यहाँ पर जो लोग मिलते हैं, जो बैच मिलता है, जो साथ साथ और चीज़ें हैं, राइट, जो हमारा पूरा मेथड है सिखाने का, दैट इज़ टोटली नॉट वेरी मच फॉर्मल. सो यू डोंट हैव टू फॉलो एनी काइंड ऑफ प्रोसीजर. इट्स टोटली अपॉन यू एंड यू कैन लर्न द थिंग्स, राइट, सो डैट आप अच्छे से समझ पाओ, सीख पाओ. और कम्युनिटी के अंदर आप आराम से चीज़ों को सीख सकते हो, ठीक है. तो जितना ज़्यादा मतलब यू गेट द पीपल जिनके साथ आप सिक्योरिटी की बातें करोगे, उतना ज़्यादा आप ग्रो भी करोगे, ठीक है. तो दैट इज़ वॉट द कम्युनिटी वी हैव करेंटली ग्रोन. मोर देन 2000 पीपल आर इन द कम्युनिटी राइट नाउ, राइट, ऑल ओवर इंडिया. अर्न अ गुड इनकम बीइंग अ मेंटोर विद अस. एक बार कोर्स खत्म हो जाता है, यू कैन स्टार्ट डायरेक्टली विद अस, राइट. यू कैन बिकम अ मेंटोर. वी हैव द पोस्ट फॉर साइबर एनालिस्ट, वी हैव द पोस्ट फॉर साइबर cyber security expert, cyber security speakers, right, and mentors. So you can start with us as well, right, and your income and obviously your experience will start there itself. Then बग हंटिंग सीखने के बाद बहुत सारी बाउंटीज कर सकते हो, लैक्स ऑफ इनकम अर्न कर सकते हो, राइट. ISO सर्टिफाइड एक सर्टिफिकेशन भी मिलता है यहाँ से ट्रेन होने के बाद. दैट मेक्स योर CV बेटर, राइट, जिससे आपको प्राइवेट और पब्लिक जॉब्स अगर आप लेना चाहते हो किसी भी सेक्टर में, उसके लिए ईजी हो जाता है, राइट, इन बेसिकली द सिक्योरिटी पोस्ट. अब यहाँ पे इतनी सारी इनकम जो अर्न होती है, ठीक है, सिक्योरिटी के पोस्ट में, उसके लिए मैं 2 लाइव एग्जांपल दूंगा अभी, राइट. एंड वो ऐसे एग्जांपल्स है जो बहुत पहले, राइट, बिकॉज इट्स बीन 1 year सिंस वी हैव स्टार्टेड एंड दीज आर द एग्जांपल्स जो सबसे पहले हमें मिले थे, राइट, व्हेन वी स्टार्टेड लास्ट ईयर. सो व्हाई आई लाइक दीज एग्जांपल्स, राइट, बिकॉज दीज आर द पीपल हु when joined Hackersvilla, they had a very different background. Aradhya Mittal was basically a first year student. एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है जिनको कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बट बीटेक कंप्यूटर साइंस में शुरू कर दिया था. ही स्टार्टेड लर्निंग कंप्यूटर साइंस, बट इतना ज़्यादा कुछ नहीं किया था. एंड जैसे ही कॉलेज आए, ही जॉइन हैकर्सविला एज वेल. एंड हैकर्सविला ज्वाइन करने के बाद कुछ 2 या 3 महीने की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के बाद ही फाउंड हिज फर्स्ट बग. एंड जो पहला बग था वही $3,000 का था जो इनको मिला. एंड यू कैन सी कि 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग यहाँ से यहाँ तक ले जा सकती है, कि एक ऐसा लड़का जिसने कंप्यूटर साइंस के अंदर पहले कुछ नहीं किया था, जिसको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही थी, वो 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद उसको ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है कि $3,000 की बाउंटी अचीव कर लेता है. $3,000 को INR में कन्वर्ट करो, इट्स 2.1 लाख रुपीज़. तो एक फर्स्ट ईयर का लड़का अगर 2 लाख, 2.25 लाख रुपए कमा सकता है, देन यू गाइज आर ऑल्सो एट फ्रॉम द सेम एज ग्रुप, राइट. आपने बताया था यू आर ऑल्सो फ्रॉम 19, 20, 21, यू आर ऑल्सो 17, 18, राइट. सो age doesn't matter, the only thing matters is that how much you want to learn and grow, right. Prachi Saxena on the very other hand, right, she was from a background
थर्ड ईयर में थी अपने कॉलेज, बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड लास्ट ईयर के अंदर जब सब लोग जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं, शी स्टार्टेड लर्निंग अ न्यू थिंग, राइट, एथिकल हैकिंग। बहुत कुछ नया था, बहुत कुछ चीज़ें नई थी, 2 साल 2.5 साल कॉलेज में हो चुके थे, उसके बाद शुरुआत करी। एंड देन शी स्टार्टेड फाइंडिंग बग्स, और बहुत सारी जगहों पे इवन पेन टेस्टिंग में शी बिकम हॉल ऑफ फेम अचीवर। एंड ऑब्वियसली इससे हुआ क्या, शी इंक्लाइन मोर टूवर्ड्स डेवलपमेंट, एंड करेंटली शी इज़ इन development sector. She is doing a very good job, right? So she basically did a lot of things. So you can basically see that कितनी सारी चीज़ें यहाँ से हो सकती है. Be it you are a first year student, be it you are a third year or last year student, you can still learn a lot of things, right, while you are going into security field. So that is why I say that this is a field where even अगर एक 60 years का भी person आता है तो उसके लिए भी एक बहुत सही नई अपॉर्चुनिटी अराइज होती है, right? So yeah, hack and slash exclusive, again 25% discount we are giving on our MRP that is there on our website. So that's for 19,999. Here it's 14,999 for you guys for the next 24 hours. If you are interested, you can directly talk to the admins, right? अगर बाद में कभी करना चाहते हो, we are totally there for you, right? We are doing all the sessions for free because we want you guys to learn, right? सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, राइट? कोई भी क्वेश्चन होता है, कुछ भी होता है, यू कैन डायरेक्टली गो हेड, विजिट आर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, विजिट द नंबर्स ऑफ द एडमिन्स, राइट, विजिट द वेबसाइट एंड सिंपली talk to us, right? So all the questions are welcome. I'll be ending the session in a minute, right? So if you have some question, आप directly type कर सकते हो. Otherwise, we will meet tomorrow at 6 p.m. and we will be having a new session based on bug bounty hunting tomorrow. ठीक है, हिंदी में ही करेंगे, मस्त आराम से सीखेंगे. Okay. If you buy this course, will the paid bootcamp in November, December be free or will it be separate? कविश, जितने भी बूट कैंप्स होने वाले हैं नवंबर से लेकर के, जो बूट कैंप्स हर महीने होते हैं, राइट, बूट कैंप्स नवंबर से शुरू होंगे तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगले अक्टूबर तक चलेंगे और सारे बूट कैंप्स आपके लिए फ्री होंगे, राइट? सो जितने भी बूट कैंप्स होते हैं हमारे पेड मेंबर्स के लिए, ऑब्वियसली वो सब फ्री होते हैं. जितने भी इवेंट्स हम लोग करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, वो सब आपके लिए फ्री होते हैं, right? So you don't need to pay extra for that. Okay, Kavish? So that's it. So let's meet tomorrow at 6 p.m. Links would be shared on your emails and on your WhatsApp numbers. So keep hacking and keep safe. Thank you guys.